ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਕਵਨ ਕਾਜ ਸਿਰਜੇ ਜਗ ਭੀਤਰ, ਜਨਮ ਕਵਨ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਕਵਨ ਕਾਜ ਸਿਰਜੇ ਜਗ ਭੀਤਰ, ਜਨਮ ਕਵਨ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਭਵ ਨਿਧ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਮਨ, ਇਕ ਨਿਮਖ ਨਾ ਇਹ ਮਨ ਲਾਇਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਹਮ ਐਸੇ ਅਪਰਾਧੀ, ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਥਾ ਦਿਆ। ਤਿਸ ਕੀ ਭਾਉ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸਾਦੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਹਮ ਐਸੇ ਅਪਰਾਧੀ। ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਥਾ ਦਿਆ। ਤਿਸ ਕੀ ਭਾਉ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸਾਦੀ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਜੈ। ਸ਼ਬਦ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਰਹਾਉ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਹਮ ਐਸੇ ਅਪਰਾਧੀ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹਰ ਕੋਈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਕਾਹਦੀ। ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੰਤਾ, ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ, ਫਿਕਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫਿਕਰ, ਬੀਤ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਰੇ, ਚਿੰਤਾ, ਚਿਖਾ ਸਮਾਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਮਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣਾ ਘਟਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਮ ਰੋਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਕਰ ਹੋਏਗਾ,
ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੀਤ ਗਏ ਦਾ ਹੈ, ਆ ਗਏ ਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਹ 2-3 ਰੋਗ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਰੋਗ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਖੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਉਹ ਵਧਣ ਘਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਦਾ ਗਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਿਰਦਾ ਗਤੀ ਰੁਕ ਜਾਣੀ, ਦਿਲ ਦਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਕਿਡਨੀ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਲੋ ਪਾਇਜ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਓੜ ਪੋੜ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਗ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਸੀ, ऐसा तो होना ही सी। कमन काज सिरजे जग भीतर, जमन जन्म कमन फल पाया। तू आया किहड़े काम से संसार विच? तेरी जग दे विच भीतर, जग दे विच तेरी जिहड़ी रचना होई सी, जिहड़ा तैनूं भेजण दा मेन कारण की सी? कमन काज सिरजे, तू किस काम लई बनाया गया? सिरजना किसी चीज नूं तैयार करना, विधान मुताबक उहदी रचना करनी। तेरी रचना हुई क्यों? तेरा संसार ते आउण दा मकसद की है? बर्गर खाना, पीजे खाना, चंगियां कंपनियां दियां ब्रांडेड कपड़े पाने, वधिया गड्डी लैनी, मोटरसाइकिल स्कूटर, चंगा घर बनाना, ये तेरा मकसद सी। पढ़ाई भी इसे लई, नौकरी भी इसे लई, बिजनेस भी इसे लई, दुकानदारी भी इसे लई, खेती भी इसे लई, नौकरी भी इसे लई। बस ये चीज़ां ते शादी करा के अगे अपने कोड़मे नूं सैट करना, अगे अपने कोड़मे नूं, अगे अपने पुत्रा पोतरिया दोतरिया नूं स्थापित करना, ये काम नहीं सी जेड़ा जग ने समझ लिया। अज किसी नूं पुछिए, वो कहंदा है असी तो जी अपना करते हैं, अपना खाते हैं, असी तो किसी की निंदा नहीं करते, असी तो अपने काम तक मतलब रखते हैं, असी ठीक हाँ। असी इंसानियत मुताबिक जीवन जी रहे हैं, असी रब नूं मनदे हैं, असी इंसान नूं मनदे हां। की गल्लां कर रहे हो? सिर्फ इन्ना क करने वास्ते परमेश्वर ने तुहानूं सिरजिया। जे किसी कामरेड, किसी नास्तिक देश विच तुसीं पैदा होए हुंदे, मंदिर मसीत गुरुद्वारे गिरजाघर ना जांदे हुंदे, फिर मैं मन लैंदा कि तुहानूं ज्ञान नहीं है।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ, ਗਰਭ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਰੀਤੀ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏ, ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਬਸ ਸਾਡਾ ਧਰਮ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਥੋੜਾ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਰਾਮਾਇਣ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਵੇਦਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਆਇਆ, ਖੁਦ ਆਇਆ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਇੱਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਦੂਜੇ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਜਿੱਦਣ ਦੂਜੇ ਤਿੰਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਤਿੰਨ ਧਰਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਕਈਆਂ ਕਹਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਮਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਵੇਦ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਤ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਕਿਉਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਆ ਗਿਆ। ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਰਾਮ, ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਭਗਵਾਨ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਆਤਮਾ ਹੋਏ ਸਤ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ,
अपने तरीके का कानून बना लिया, बस दैट्स ऑल, इन्ना क बहुत है। किसी गरीब भिखारी को रुपये 10 दे दिते, किसी धार्मिक जगह के अगों लंघन लगे थोड़ा जहा झुक के, अजकल रिवाज है, एक ऐस कंधे नूं हथ लाया, एक ऐस नूं लाया, एक मथे नूं ला के ते एक मूँह नूं ला दिता, बस ये साडी नमस्कार हो गई। उच्चा उठो, अगे वधो। विश्व दी जिहड़ी पढ़ाई है, विश्व दी पढ़ाई का टाकरा करो, लेवल बनाओ, अपनाओ, उस स्तर बनाओ। ये कोई नहीं कहता इस हिंदुस्तान दे विच खदर दे कुर्ते पजामे पा के भी दुनिया दे विच धाक जमाई है। इथों दे लोकां ने अपना पहरावा, अपना कल्चर, अपनी धरती नाल जुड़ के दुनिया दे विच लोहा जमाया है। इस हिंदुस्तान दे वीर सपूतां ने, महात्मा ने, संतां ने। वो संती सी, सत नूं लैके चले सी, दृष्टि दे विच सी कि सत सारे विश्व दे विच प्रगट करना है। सारे विश्व दे विच इस सच दा झंडा, इस सच दी जोत, इस सच दा परचम लहराउणा ते लहराया, लहराया। अज वैसटर्न कंट्रियां दे विच जे श्री कृष्ण भगवान की गल होंदी है, उथों गोरे आके मथुरा दे विच कृष्ण भगवान दे शब्द गा के उन्हें झूमदे ने। वो साडे इस देश विच पैदा होके उथों तक गल गई ना उन्हां दी। जे गल गई तो वो लोग इत्थे आए। उन्होंने अंग्रेजी दे विच गीता का अनुवाद करके पढ़िया, उन्होंने पता लग गया कृष्ण भगवान सच बोल रहे, सच का ज्ञान दे रहे। महावीर, गौतम बुद्ध किन्ने गिने नहीं जाने अपने तो, एडे एडे महात्मा, विश्व स्तर का ज्ञान, विश्व स्तर का संसार लोक तो ब्रह्म लोक तक का ज्ञान। उन्हें अपनी जमीन नहीं छड़ी, उन्होंने अपना कल्चर नहीं छड़िया, वो डोले नहीं, वो किसी का तन नंगा वेख के उन्हें अपने कपड़े नहीं लाए। उन्हें कहा तुहानू मुबारक, तुहाडियां मावां भैणां धीआं बिना कपड़ियां तो घूमदियां होणगियां, पर साडा कल्चर नहीं है, असीं पावांगे। साडे गुरुआं दा, पीरां दा उपदेश है, आपदी दौलत, अपने रिजक नूं ढक के रखना। ये साडी प्रॉपर्टी है, ये साडा दात है परमेश्वर वालों दिती हुई। धन होवे, बच्चा होवे, स्त्री होवे, पुरख होवे, दौलत होवे, हीरा होवे, सोना होवे, कीमती वस्तु नूं छुपा के रखना, पर्दे च रखना, चोर तो बचा के रखना, चोर दी निगाह तो बचा के रखना। जिन्नी कीमती वस्तु होंदी जाएगी उन्नी ओदी संभाल रखनी। ये साडा कल्चर, ये साडी सभ्यता। असीं अपना मूल गवा बैठे, असीं अपने घर दे विच ही मां बाप नाल गल करनी भुल गए हैं। सत्कार खत्म हो गया, तू तो मैं ते गल आ गई है। सेल्फिश हो गए हैं, सिर्फ अपने जरूरत तक सीमित हो गए हैं। बस
हौली हौली करके पहला साडे शहरां चों ये चीज़ खत्म हुई, हौली हौली सिमट के ये महल्लियां च आ गई, महल्लियां तो घरां च, हुण तां परिवारां दे विच ही आपो अपने कमरियां तक सारे सीमित ने। एक दूजे का किसी को सलाह वास्ते दुख सुख वास्ते समय ही नहीं। जे कोई सलाह देंदा है तो असी लैन ते एग्री नहीं, मनदे नहीं। असी कहने तू कौन होवे मैनू सलाह देना, मैनू पता मैं की करना। चलो हवा ही ऐसी चल गई है। क्यों चल गई है? मूल भुल गए हैं। कवन काज सिरजे जग भीतर, जन्म कवन फल पाया। किस फल की प्राप्ति वास्ते जीवन पाया सी? किस फल की प्राप्ति वास्ते? केड़ा फल सी वो जिन्हों प्राप्त करना सी? वो फल सी सत, उसी रोशनी, उसी निरंजन, उसी निरंकार, उसी सरगुण, उसी निर्गुण, उसी निराकार, उसी नाद, उसी सुन, उसी ब्रह्म। तुसी कहोगे की चीजें बोलते पे, ये कित्थों मिलदियां ने? थोड़ा धर्म नूं, संत नूं, महात्मा नूं सहज नाल पढ़ो, समझो। इसे कार्य वास्ते दुनिया ते आए हो, इसे कार्य वास्ते। जदों तुहाडी दृष्टि विच खोज ही गलत चीज दी है, वन साइडेड चल रहे हो, दो सफर सी, दो दा तुसी एक बना लिया। संसार लोक लग तुरना सी, ब्रह्म लोक लग तुरना सी। ब्रह्म लोक की समगरी लग कट्ठी करनी सी, संसार लोक की लग कट्ठी करनी सी। संसार लोक ते रहन वास्ते कपड़ा आहार घर चाहिदा सी, बच्चों नूं रोटी, ओदे वास्ते धन, रिश्ते चाहिए सी, जगह चाहिए सी, स्पेस चाहिए सी। ते आत्मा की खुराक जिहड़ी शरीर दे विच आत्मा आई है, जिस कारज ने तैनूं जन्म दवाया, ओदे वास्ते दृष्टि दे विच चाहिदा सी प्रकाश, ज्ञान, सोझी। वो हरि दा नाम, ओदी बंदगी, ओदी साधना एक पूरा प्रोसैस सी। जिन्ना कम संसार लोक ते जीवन वास्ते सानू चाहिदा सी, जिन्ना संसारक जीवन वास्ते सानू जिन्नी समगरी चाहिदी सी, जिन्ना ओदे ते समा लगना सी, उदों तो दुगना सगम समा अध्यात्मक ते लगना सी, आत्मा की खुराक ते लगना सी, इस मार्ग नहीं लगना सी। असी केवल संसारक जीवन नूं जीवन समझ लिया, आत्मक जीवन का बोध ही नहीं होया, ज्ञान ही नहीं होया, सोझी नहीं हुई। 15-18 साल परमेश्वर ने वेख्या भी ये जिस काम लिए गया वो करदा, जदों नहीं किया 20 साल बीत गए, चलो शादी हो गई है, बच्चे हो गए ने, हुण तां करेगा, नहीं किया। फिर राम ना, फिर परमेश्वर ने याद कराउण वास्ते इनू इहदा कीता वादा याद आ जाए, फिर उन्हें हल्की जी चोब मारनी शुरू कर दी, थोड़ी जी याद कराउण वास्ते। कोई बंदा सुता होवे, आपां उहनूं माड़ा जिहा हिलाउने आ पैर फड़ के, उहनूं पता लग जाए मैनूं जगाउण वास्ते हिला रहे ते उठ पैंदा। बंदा मचला हो जाए तो जोर भी हिलाने आ। तुसीं ये भी देखिया, मावां कई बारी पानी का डब्बा पा के मूँह ते पा दिंदियां, बच्चे स्कूल तो लेट होंदे होण, कई बारी कन्न ते ला भी देंदियां। तू रोज मचला हो जाए, उठदा नहीं, थल्ले मजा खिंच लेंदे, बिस्तरा खिंच के थल्ले भी सिट देंदे। ऐसा भी होंदा।
बस राम तुहाडे नाल ओही कर रहा, तुहानू जगा रहा है। जदों जाग जाओगे दुख पिछे मुड़ जाएगा। मां का काम तो जगाना है, राम का काम तो तुहानू जगाना है। जाग जाओ, नहीं जागोगे जीवन जुए हार जाओगे, हार जाओगे। ये अवसर बीत जाएगा, दोष लग जाएगा, मरण तक समा बड़ा भयानक हो जाएगा। मरना भी खराब हो जाएगा, मरण तो बाद अगे भी सब कुछ खराब ही खराब है, खराब ही खराब है। मुड़न विच भला है, पिछे मुड़न विच भला है, जागण विच भला है। पवनित तरन तारण चिंता मन, एक निमक ना ए मन लायो। एडा वड्डा वादा करके आया सा राम नाल, एक मिनट भी चित नहीं लाया तू। बाहर मुखी तेरे को तूफान जगान नू, आरतियां करन नू, रौला पान नू तेरे को बड़ा कुछ है। वो तेरे अंदर बैठा जींदा जागदा राम तेरे अंदर बैठा है। वो तेरे शरीर का मालिक अंदर बैठा है, करता अंदर बैठा है। तू बाहर ढूंढी जाना, तू बाहर टलियां खड़काई जाना, अंदर वाली टली खड़का। तू बाहर संख पूरी जाना, तू बाहर जोर जोर दी आवाजा मारी जाना, अंदर आवाज मार, अंदर आवाज मार। वो तो अंदर बैठा है। बाहरों जिन्नियां मर्जी आवाजा मारी जाओ, कदे आवाज ना आएगी तुहानू पुठी। जिन्हों तुसी पुकार रहे हो कदे ना बोलेगा। अंदर तुसी 4 दिन आवाज मार के वेखो, 5वें दिन अंदरों बोल पाएगा, हाँ हैगा मैं, एहसास हो जाएगा। दृष्टि बड़ी बड़ी ताकत है, बड़ी बड़ी शक्ति है। सोच आपा एक प्लानिंग बनाने प्रोजेक्टर ते, किसी फिल्म नू शूट करते हैं, किसी बिल्डिंग नू शूट करते हैं, उन्होंने शूट करके फिर उन्होंने प्रोजेक्टर ते आपां अगे विखाउने। मान लो कोई बिल्डिंग बन रही है, ओदियां विशेषतावां आपां पहला शूट कीतियां ने, पहला रिकॉर्ड कीतियां ने, फिर आपां उन्हां नूं प्रोजेक्टर ते किसी नूं विखा रहे हैं कि ये बिल्डिंग इस काम लई बन रही है, इहदे विच घर लो, दफ्तर लो, जो भी होवे, मॉल है, कुछ भी। हुण वो की है, वो शूट करन तो लैके उन्हें डिस्पले करन तक वो दृष्टि है। समझाउण मात्र समझ रहे हैं, समझा रहे हैं कि पढ़े लिखे हो तो समझ आ जाए। तुसी अपने अंदर इसी तरह एक प्लानिंग बनानी है कि मैं परमात्मा मेरे अंदर है, मैं उन्होंने मिलना है। निरंकार मेरे अंदर रहिंदा है, जिदा आकार कोई नहीं, वो जोत स्वरूप है। वो मेरे अंदर पावर, जोत, ऊर्जा वो मेरे अंदर है। निराकार मतलब ऊर्जा, जिवें बिजली है, उसका कोई आकार नहीं है। उन्होंने जिदा मर्जी वरत लो, उहदे नाल मोटर चला लो, उहदे नाल फ्रिज चला लो, जो मर्जी, उसका आकार कोई नहीं। पानी है, उसका आकार कोई नहीं है। लम्मी बोतल च पा लो, सीधी च पा लो, मटके च पा लो, उदा दा ही हो जाए। इसी तरह तुहाडे अंदर एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा नूं कोई जोत कहंदा है, कोई आत्मा कहंदा है, कोई उहनूं सहपन कहंदा है, कोई निराकार कहंदा है।
कोई उन्होंने हरि कहते। हरि के अर्थ की ने जो हर एक दे अंदर री, जो हर एक दे अंदर मौजूद है। आप कहने ना हर एक बंदा, एवरीवन, कोई भी, इसी तरह हरि जो हर एक दे विच रहिंदा है, हर एक जन दे विच रहिंदा है। हरिजन हर एक दे विच बैठा हो, हर एक जन दे विच बैठा हो, वो ऊर्जा। जदों तुसी ओनू मिलन दी दृष्टि बनाओगे कि वो मेरे अंदर ही वसदा है, ते तुहाडी जिहड़ी आत्मा है, जिहड़ा सत दा सफर है वो शुरू हो गया। जिहड़ा तुहाडी ये दृष्टि तुहानू आत्मा तक ये सफर ले जाएगी। फिर समझो, जदों तुसी ये दृष्टि दे विच बना लिया कि निराकार नू मिलना है, उस ऊर्जा नू मिलना है, उस पावर नू मिलना है, ते सफर कादे नाल तोरना है? सत नाल। सत की है? नाम, शब्द, मंत्र, जिहड़ा तुहाडा गुरु तुहानू दे दे। ओदी एक विधि है। वो विधि नाल जदों तुसी अंदर प्रवेश करोगे, शब्द नू जपोगे ते ध्यान ओदे शब्द दे विच रखोगे, तुहानू मन दा ज्ञान हो जाएगा, सुरत दा ज्ञान हो जाएगा। एक शब्द जपन नाल पहले दिन ही ज्ञान हो जाएगा तुहानू मन दा कि मेरा मन किन्ना क मेरे कंट्रोल च है। दो बारी शब्द जपोगे, तीसरी बारी मन फुर, फिर मोड़ के ले आओगे, फिर फुर। पहले दिन ज्यादा दौड़ेगा, दूजे दिन घट, तीजे दिन घट, चौथे दिन हौली 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 हौली। वो शब्द का काम है केवल मन नू अपने घर च ले आना। जिथे तुसी उस बुद्धि नू, मन नू, दृष्टि नू, दृष्टि भी कह सकते हो मन नू, जिथे तुसी वो दृष्टि लैके जानी है, जिथे तुसी मन नू लैके जाना चाहते हो, वो तुहाडे काबू च आ जाए ते उधर नू तुर पवे। शब्द का काम इन्ना है, मंत्र का काम इन्ना है, तुहानू मन का ज्ञान कराउणा ते जिथे तुसी, जिथे तुहाडा परमेश्वर अंदर बैठा है, उथों तक उहनू लैके जाना। कोई बच्चा तुहाडे कहने च होएगा ते तां ही दुकान तो तुहानू दुध का पैकेट लिया के देगा, बिस्कुट लिया के देगा। तुसी बुलाओगे इधर, बच्चा उधर नू जावे, किवें आएगा? उथे तक किवें पहुंचेगा जिथे तक तुसी उहनू पहुंचाउणा है? जदों बच्चा आग्याकारी हो जाए ते वो दुनिया का महान अफसर बन जाता है। माँ बाप जिथे उहनू पहुंचाउणा चाहे उथे पहुंच जाते हैं, माँ प्यार दसी जाता है, बच्चा उधर नू तुरिया जाता है। इसी तरह तुहाडे अंदर एक शरारती बच्चा मन है, सुरत, ध्यान, दृष्टि। जदों ओनू तुसी शब्द नाल काबू करना सीख लोगे, शब्द सत है, सत शब्द है, कहते ना सत नाम, एको ओंकार सत नाम, एको ओंकार शब्द है, ये सच्चा नाम है। जदों इनू तुसी इहदे नाल मन वस कर लोगे तो फिर की होएगा? परमात्मा जाए ब्रह्म को। हुण जिहड़ी आत्मा है ना, उहदा असल देश ब्रह्म है। ये जदों तुसी इस पासे नू तुरोगे, ये विद्या लैनी शुरू करोगे, ये सारी विद्या अदृश्य है। दृष्टमान संसार है, संसार की निगाह नाल ये चीज नहीं विखनी। संसारी बंदा कहे मैनू ब्रह्म दिखाओ तो नहीं विखना, विद्या नहीं है ना, ज्ञान नहीं है। हुण कोई अनजान बंदा कहे हवा का भार तोलना है तो किवें तोलेगा? हवा नहीं तोली जाती। पर जदों किसी साइंसदान को आ जाएगा, वो कहेगा पहला एक गुब्बारा लो, ओदा वेट करो, फिर ओदे विच हवा भरो, फिर ओदा वेट करो, जिन्ना वेट वध जाएगा वो हवा दा होएगा।
जुगती नाल हवा तोली गई, उवें किवें तोलेगी हवा? हवा नूं पहलां कैद किया बलैडर दे विच, पहलां खाली बलैडर तोलिया, फिर हवा भर के तोली, जिहड़ा भार वधिया वो हवा दा हो गया, हवा तुल गई, जुगती नाल तुल गई। इसी तरह ब्रह्म है, विखेगा पर जुगती नाल विखेगा, संत विखाएगा। ਇਹਦਾ टीचर प्रोफैसर यूनिवर्सिटी संत है। ये वेदां ते शास्त्रां दा ज्ञान संत नूं है, महात्मा नूं है। ये महात्मा दिखाएगा। तुसी यूट्यूब दे उत्ते जिन्ना मर्जी ज्ञान खोजी जाओ, ज्ञान नाल परमात्मा नहीं मिलता, राम नहीं मिलता। ये तो हाथ फड़ के जदों तक मां बच्चे दा, टीचर बच्चे दा पूर्णा पा के हाथ नाल ऊड़ा ए बी सी ना लिखावे, उदों तक बच्चे नूं लिखना नहीं आउंदा। किन्ना ही बच्चा होशियार होवे, तुसी उहनूं कहो ए लिख, नहीं लिख पाएगा। भावें उहदे सामने ए लिखिया विखा दिओ उहनूं, तुसी नहीं लिख पाएगा। जदों उहनूं पहला डाउट पा के देने हो, छोटे छोटे टिमकणे पा के उहदे उत्ते उत्ते वो चलाउंदा है, फिर हौली हौली मां या उहदा टीचर उहनूं ए लिखना सिखाउंदा है। एक दिन फिर वो रनिंग हैंड दे विच पूरी अंग्रेजी लिखदा है, भाषा लिखदा है। इसी तरह अज जदों तुहानूं इस रस्ते ते तोरांगे ते एक दिन तुसी लोकां नूं ब्रह्म दिखाओगे, संगत नूं ब्रह्म दिखाओगे, परमेश्वर नूं ब्रह्म दिखाओगे। साडे गुरुदेव ने जदों सानूं ब्रह्म दिखाना शुरू किया, सानूं भी हनेरा ही विखदा सी। जदों अखां बंद कर लैणियां ते अगे हनेरा, असीं कहना ये हनेरा ब्रह्म है। उस हनेरे दे विच लाइट खोजदे रहना, उस हनेरे दे विच सोचना पता नहीं अगों कुछ खुलेगा। पर जिस दिन ब्रह्म दिखिया, उस दिन इन्हां अखां नाल नहीं दिखिया, वो एक तीजा नेत्र हो रहा है। असी जोर इन्हां अखां ते देंदे रहे ब्रह्म नूं वेखण लई, पुठियां कर सीधियां कर, पर वो तां आखी परमात्मा ने टाइम दे टाइम दित्ती जदों उहने विखाउणा सी। पहला तो अख दा ही ज्ञान नहीं सी। ये अखां संसार वास्ते ने, इन्हां नाल संसार वेखो रज रज के। ब्रह्म नूं वेखण वास्ते तीजी अख, थर्ड आईज, शिव नेत्र कुछ कह लो। वो सुरत दी अख है, ध्यान दी अख है, ज्ञान दी अख है, बोध दी अख है। वो जदों बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, सोझी हो जाएगी, उदों अख खुल जाएगी, फिर उहदे नाल ब्रह्म दिखेगा। आत्मा राम निरंजन सोए। ये आत्मा जदों निरंजन दे विच रम जांदी है, निराकार दे विच रम जांदी है, कहण दा भाव पहला तां इहदा ज्ञान सोझी होनी। हले तां असीं केवल मन नूं जाणदे हां, मन तो अगे तुरे ही नहीं। जदों मन तो अगले पासे सानू एक आत्मा होर पावर दिखाई देगी। हले सिर्फ असीं मन की पावर नूं जानते हैं बस, कि मन सोचता है, मन ज्ञानी है, मन पढ़ता है, मन तो बगैर बंदा मंद बुद्धि है, मन ना होवे ते कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिहड़ी सैकंड पावर है साडे अंदर आत्मा, वो भी इंडिपेंडेंट पावर है। जिस तरह मन इंडिपेंडेंट पावर है, इसी तरह आत्मा भी इंडिपेंडेंट पावर है। वो भी अपने आप चलती है। इथों तक कि आत्मा की पावर नाल मन चलता रहा। जिवें चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं है, चंद्रमा सूरज की रोशनी नाल चमकदा है। पता तुहानूं चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं है। चंद्रमा के उत्ते जदों सूरज का फोकस पैंदा है, रोशनी पैंदी है, उदों चंद्रमा सानूं चमकदा दिखाई देंदा है। उहदी अपनी रोशनी नहीं है। इसी तरह मन की अपनी रोशनी नहीं है।
मन आत्मा दा जदों फोकस पैंदा है तां मन बनदा है। फोकस मन है, जिहड़ा मन है वो आत्मा दा फोकस है। पर बुरा क्यों हो गया? जिहड़ी जन्मा जन्मा दी मैल लगी सी वो अंतःकरण मैला सी। जदों आत्मा दी लाइट अंतःकरण चों लंघ के मन ते पई ते जिद्दां दी अंतःकरण सी उदां दा मन बन गया। अंतःकरण मैला सी, मन मैला हो गया। जिवें गड्डी दी लाइट हुंदी है, उहदे अगे पीला कागज ला दिओ ते लाइट पीली हो जांदी। जिहो जिहा अंतःकरण हुंदा, जिन्ना बुरा अंतःकरण है उन्ना ही बंदे दा मन बुरा है। जिन्ना अंतःकरण वाइट है, जिन्ना अंतःकरण शुद्ध है, जिवें जिवें बंदगी करते जाओगे, सिमरन करते जाओगे, अंतःकरण धुखदा जाएगा ते मन शुद्ध हुंदा जाएगा। जिहड़ा मन किसी टाइम बंदे मारन तो परवाह नहीं सी करदा, वो मन एक दिन कीड़ा नहीं मार सकेगा। बोध हो गया, ज्ञान हो गया, शुद्ध हो गया, साफ हो गया। आत्मा ते मन दा इक्को जिहा नेचर हो गई। अज मन दी नेचर हो रहा है, आत्मा दी नेचर हो रहा है। आत्मा नहीं चाहती किसी का नुकसान होवे। मन कहता है की परवाह, जियां का जी आ रहा, मार मार खाई चलो। बकरा भी खा लो, मुर्गा भी खा लो, मच्छी भी खा लो, खाई चलो। की फर्क पैंदा है? ये खान नूं ही तां बने ने। जिस दिन आत्मा आएगी वो कहेगी ना, अपनी लोड़ वास्ते जी ना मार, जी ना मार, अपनी लोड़ वास्ते हत्या ना कर, हत्या ना कर। जो कणक, चावल, चने, जो ये चीज़ां है तां किसी टाइम ये जीवत सी, पर अज ये जूनी भोग के आपदा फल पक के गिर गया। इहदे नाल आहार कर। किहदे नाल आहार कर? है तो ये भी अंडज जेरस सेतज उत्पज चार जूनियां, चार तरह दीयां खाणियां ने। जो हत्थां नाल आपां बीजदे आ, कणक बीजदे आ, ये भी जूनी है, पर वो जूनी भोग चुके है, वो फसल पक चुकी है, वो ओदा वेस्टेज है। चने ओदा वेस्टेज है, वो हुण जूनी नहीं है। ते तू इहदे नाल अपना काम चला, ये खा, शुद्ध आहार खा, किसी दी दुआ बददुआ तो बच, किसी दा कलेश ना ले, किसी दी हाय ना ले। जीव मारेगा बददुआ देगा, बददुआ देगा, देगा। इवें जदों तेरी तू निरंजन विच जाएगा, आत्मा रमेगी, राम दे विच रम के आत्मा निरंजन हो जाएगी। परमानंद राम को होए। दुनिया ते जिहड़े सुख लभदे हो, बहुत वारी बचना दे विच ये बचन सतगुरु कह चुके ने, बख्शिश कर चुके ने। संसारक आनंद सदैव आनंद नहीं है। 2 4 10 मिनट, घड़ी, पल, साल, 6 महीने तो वध आनंद नहीं है। कोई भी चीज है, जवानी का आनंद भी है, किन्ने साल। स्पोर्ट्समैन हो, किन्ने साल, जित का आनंद किन्ना है। राजनीति को किन्ना चिर आनंद है, अफसर हो किन्ना चिर आनंद है। आखिर नूं तो शरीर छड्डना है ना, फिर ये आनंद इत्थे रह जाएगा। ये कोठियां दा, एसी दा, गड्डियां दा, ये आनंद सारे इत्थे रह जाणगे। की तुहानूं अगला जिहड़ा लोक है वो विखदा नहीं, तुसीं इस करके कहंदे हो कि अग्गा किन्ने वेखिया। ते ये जिहड़े धार्मिक लोग, कबीर जी, फरीद जी, तरलोचन जी, रविदास जी महाराज, इतने वड्डे वड्डे महात्मा, कृष्ण भगवान, गुरु नानक देव महाराज, राम जी, एडे एडे संत महात्मा, गुरुदेव साडे वास्ते बचन लिख गए, ये गलत लिख गए।
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੋ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਵੋ, ਪੂਰੇ। ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਜੋੜਿਆ, ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਖਿਆਲ ਕਰ ਬੰਦੇ, ਖਿਆਲ ਕਰ। ਕਵਨ ਕਾਜ ਸਿਰਜੇ ਜਗ ਪੀਤਰ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ? ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਗਈ, ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਹਮ ਐਸੇ ਅਪਰਾਧੀ, ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜੋ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ? ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਥਾ ਦਿਆ, ਤਿਸ ਕੀ ਭਾਉ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸਾਧੀ। ਜਿਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਕਰਾਇਆ, ਏਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ, ਕੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੌਰ ਤਾਂ ਕਰ, ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਦੇ ਰਕਤ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? 9 ਮਹੀਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਤੂੰ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਛੇਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰੀਂਦਾ। ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਲਾੜ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੰਨੇ ਪਾਇਆ? ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਊਰਜਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਨਰਾਇਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨੀਰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਉਹ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਛੁਪਿਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਬਚਪਨ, ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਜਾਗਲ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿੰਦ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੀਟਾਣੂ ਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਭਰੂਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਭਰੂਣ ਉਸ ਦਿਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਭਰੂਣ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ।
80 ਸਾਲ 90 ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਆਜੂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕਾਲ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਐਡਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ 5000 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ? ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੇਗਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਉਹਨੇ। ਤੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਪਵਾਦ ਨਾ ਛੁਟੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ? ਪਰਾਏ ਧਨ ਤੇ ਨਿਗਾਹ, ਪਰਾਏ ਧਨ ਤੇ ਨਿਗਾਹ, ਪਰਾਈ ਚੁਗਲੀ, ਬਦ ਫੈਲੀਆਂ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਸੀ? ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਮਨ ਹੁਆ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਕਾਲਕ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਧੋਣਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਮੂਤ ਪੁਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਣ। ਸਾਬਣ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਲ ਧੁੱਪਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰ ਧਨ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਨ, ਪਰ ਧਨ, ਪਰਾਏ ਧਨ ਵੱਲ, ਇਸਤਰੀ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ। ਪਰ ਨਿੰਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਦੂਜੇ ਬੁਰੇ। ਪਰ ਅਪਵਾਦ ਨਾ ਛੁਟੇ। ਤੂੰ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਦੀ। ਅਪਵਾਦ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਮਾਰ ਧਾੜ ਕਰਨੀ, ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਵਾਗਮਨ ਹੋਤ ਹੈ ਫੁਨ ਫੁਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਸਿਆ? ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਬਣਦਾ। ਇਹੀ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਗਮਨ ਚ ਹੈ, ਜੂਨੀਆਂ ਭੋਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਖੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈ ਕਰ ਕਥਾ ਹੋਤ ਹੈ ਹਰ ਸੰਤਨ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨਾ ਕੀਨੋ ਮੈਂ ਫੇਰਾ। ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ? ਸੰਤ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਸੁਣਨੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ? ਕਿਉਂ ਸੁਣਨਾ ਸਤਸੰਗ? ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਸੁਣਨਾ? ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਤੇ ਗੁਮਾਨ ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਦੀ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ? ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਨਮਦਾਰ ਜਨਮ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲਣਾ, ਸਤਸੰਗ ਚੋਂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲਣਾ। ਸਤਸੰਗ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜਾ ਲੈਣਾ।
ਰਾਹ ਦੱਸ ਦੱਸ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸੰਤ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਸੰਤ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਰਾਮ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੰਤ कि मैं गुरु रवां ते मेरा चेला चेला ही रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। असल संत महात्मा जो ब्रह्म हो चुके है वो तो तुहानू सब नू संत बनाउण दी कामना करदा है, अरदास करदा है परमेश्वर ब्रह्म अगे, महाराज जिन्नी छेती हो सके किरपा करो इन्हां ते, इन्हां नू संत बनाओ। लपटन चोर लंप चोर दूत मतवारे, तिन संग सदा बसेरा। तू तां लिबड़िया होयां दे नाल ही सदा लटकिया, किहदे नाल लिपटिया रहा? लंपट चोर दूत मतवारे, जेड़े ठगियां करने वाले सी तेनू चंगे लगे, लिबड़े हुए लोग बुरे कर्म करने वाले, पर इस्त्री भोगन वाले, पर पुरख भोगन वाले, काम ते क्रोध दे विच लिपत, हौमा ते हंकार च लिपत, दूजियां दा धन लुटन वाले, नुकसान करने वाले, मार धाड़ करने वाले, हौमा ते हंकार दे विच भरे पे लोग तेनू चंगे लगदे सी। उन्हां नाल तू आपदी लेवा देवी बनाउंदा रहा, उन्हां नाल ही तेरा वसेबा रहा। काम क्रोध माया मद मकसद, ए संपै मोह माही। हे परमेश्वर, हे दया दे दाते, मैनू इन्हां चीजां दे पल्ले ना पाई। अरदास करो, मैनू काम क्रोध तो बचाई, मैनू माया के प्रभाव तो बचाई, मैं इन्हां नाल किते लपटिया ना रह जा। ठीक है, कारोबार करना है, संसार चलाना है, चंगा जीवन जीना है, माया आवे जाए, करोड़ा आण करोड़ा जान, प्रभाव च नहीं आउणा। कमल दे फुल आंगू, मरगाई दे खंभा आंगू निरालम रहना, प्रभाव च नहीं आना। आए जाए करोड़ा आउण जान, पर तुसी प्रभाव च नहीं आना, तुसी ओदे प्रभाव च नहीं आना। वरतों करनी, पर अपना चित, अपनी दृष्टि उस परमेश्वर नाल जोड़ के रखनी। दया धर्म अर गुर की सेवा, एस पंतर नाही। दया धर्म नू समर्पित हो जा, दया धर्म नू अपना लेना। गुरु दी सेवा तो बगैर, गुरु दी बख्शिश तो बगैर, गुरु दी मेहर तो बगैर ये दात प्राप्त नहीं होती, ये रस्ता प्राप्त नहीं होता, ये मार्ग प्राप्त नहीं होता, इन्नियां वैबतां तो छुटकारा नहीं होता। गुरु दा डंडा सिर ते जरूरी है। दीन दयाल कृपाल दमोदर भगत वचल पैहारी। हे कृपालु, हे दमोदर, हे भगतां दी लाज रखन वाले परमेश्वर, मैं तेरी शरण चाह, मैं तेरे चरना चाह, मैं तेरी कचहरी चाह, मैं तेरा ज्ञान लैण वास्ते, तेरी बख्शिश लैण वास्ते, तेरी कृपा लैण वास्ते, तेरी दया लैण वास्ते श्वास रोक रोक के तेरी इंतजार कर रहे हैं। एक एक श्वास दे विच मैं तेरी बख्शिश नूं धारण करने वास्ते तैयार बैठा।
ऐसी हिरदे दे विचों पुकार कि महाराज एक एक श्वास, एक एक साह मैं तेरी दया नूं, तेरी बख्शिश नूं धारण करने वास्ते इंतजार करदा पिया। तू दया कर, मैं तेरी कचहरी च, मैं तेरा, मैनू इन्ना ज्ञान हो गया, बोध हो गया, संसार नूं वेख के मैनू पता लग गया ये संसार दे उत्ते जिन्हें तेरा लड़ ना फड़िया, ये बोध ना लिया। कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे 6,000, हरुए हरुए तिर गए डूबे जिन सिर पार। महाराज तू दया कर, अपनी बेड़ी बख्श। कहत कबीर पीर जन राखो, हर सेवा करो तुम्हारी। मैं तेरी सेवा राम दी, तेरी बख्शिश, तेरा सिमरन, तेरा हुक्म आप जपना, दूजिया नूं जपाउणा, आप ब्रह्म नूं प्राप्त करके दूसरियां नूं रस्ता दसना, आप ये आनंद लैके, आप सिमरन करके नाम जप के, आप नाद सुन के, आप सुन च जाके ये सारा ज्ञान बोध लैके अगे जो जग्यासू ने, जो सच दे मार्ग ते चलना चाहते ने, जो परमेश्वर होना चाहते ने, उन्होंने ये ज्ञान देना। भुलन अंदर सब को अभुल गुरु करतार। बुलाओ फतेह। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की